Good morning, my dear students of 10th grade. Today we are going to discuss about real and apparent depth. In the previous video, we were already discussed about real and apparent depth. What is real and apparent depth? An object is placed in a denser medium. जब कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पड़ा होता है, when it viewed from a rare medium, अगर हम डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम व्यू कर रहे हैं फ्रॉम रेयर मीडियम, देन इट अपीयर्स टू बी अ डेप्थ. वो किस डेप्थ पर लगेगा? लेसर देन इट्स रियल डेप्थ. ठीक है, मीन्स जो उसकी रियल डेप्थ होगी उससे क्या लगेगा? लेसर देन रियल डेप्थ. दिस इज बिकॉज ये किसके कारण होगा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Now there is a derivation of real and apparent depth. क्या होता है? See here in the diagram. There consider a point object O. Here this is a point object O, right? This is a point object O kept at the bottom of a transparent medium. जिसे हमने कहाँ पर रखा है? Bottom of a transparent medium. Transparent medium क्या होगा? Water or glass, anything. ठीक है, here is the water. ठीक है, water separated by a from air by the surface PQ. This is a surface PQ, means this surface separate both the medium, means this is a water or glass and this is air, and the ray PQ and the boundary PQ separate both the medium. A ray of light OA, it is a ray of light starting from the object O is incident on the surface PQ normally. ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जब कोई रे इंसिडेंट करती है नॉर्मली तो वो कैसे जाती है? इट पासिस अनडेविएटेड. ठीक है, वो सीधी चली जाएगी, मीन्स नॉर्मली चली जाएगी, उसका कोई डेविएशन नहीं होगा. मीन्स व्हेन सम रे इज इंसिडेंट नॉर्मली देन इट पासिस अनडेविएटेड. ठीक है, वो क्या चली जाएगी? अनडेविएटेड अलॉन्ग द पाथ ए डैश. अनदर रे ओ बी. अब कोई अनदर रे है ओ बी. दिस इज अनदर रे ओ बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओ. जो किससे स्टार्ट हो रही है? ऑब्जेक्ट ओ से. ठीक है, पहले तो एक रे ऐसे चल गई, नॉर्मली चल गई, जो क्या हुई? अनडेविएटेड पास हो गई. एंड द अनदर रे इज ओ बी. ठीक है, वो क्या चले जाएगी? Another ray OB starting from object O strikes the boundary of the surface PQ at B and suffers from refraction. Because medium change हो रहा है तो क्या होगा? Refraction होगी. वो कहाँ से ट्रैवल कर रही है? This is a denser medium and this is a rare medium. ठीक है, वो denser से rare medium कर रही है तो it bends away from the normal. See here, this is denser and this is rare medium, so it bends away from the normal. N dash B and dash drawn at a point of incidence B. ठीक है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है. N dash N B and N dash from the B on the surface PQ and travels along BC. तो कैसे ट्रैवल करेगी? BC के along क्या करेगी? ट्रैवल करेगी in air. When we viewed this, ठीक है, when we viewed the point object from outside, means from rare medium, the ray BC appears to coming from point I. तो हमें क्या लगेगा? मैंने बताया था कि जो हमारी आंखों में आकर लाइट स्ट्राइक करती है वो क्या हमारी आइज क्या करती है? उसे रीट्रेसेस बैक. ठीक है, जब वो उसे रीट्रेस करेगी बैक तो क्या अपीयर होगा कि लाइट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम पॉइंट आई. यही होगा ना. the ray BC appears to coming from the point I, which is the virtual image of O. जो क्या इसकी वर्चुअल इमेज है जो हमारी आइस ने स्ट्राइक की, मीन्स हमारी आइस ने जो पाथ रिट्रेस किया. दिस इज अ वर्चुअल इमेज obtained on producing A dash A. ठीक है, और A dash A को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? I आएगा. ठीक है, एंड CB बैकवर्ड. CB क्या जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. Thus any object placed at O, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है O पर, when we see from above, means from rare medium, from air, will be appear at I, which is at the lesser depth. हमें क्या लगेगा? वो कहाँ पड़ा है? I पर, जो क्या है उसकी lesser depth है, then its actual depth. For the incident ray OB, अब देखो OB हमारे पास इंसिडेंट रे है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? For the ray OB, the angle of incidence is equal to OB and N dash. For OB, इसके लिए form this triangle. This OB and N dash, angle of incidence is equal to OB and N dash I, and angle of इसका refraction क्या होगा? CB and N. CB and N क्या होगा? Angle of refraction. Since AO, बेटा C carefully, AO and
and BN dash both are parallel. AO and BN are parallel and OB is transversal. ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है. So this angle is equal to this angle of B is equal to angle of O. अगर दो लाइनें पैरेलल हो और एक लाइन ट्रांसवर्सल हो तो if this angle is I then this angle is also I. So angle AOB is equal to angle OB and dash means both are equal to I. Similarly अब क्या होगा, I अब हमें इमेज यहाँ दिखाई दे रही है IA dash and BN. IA dash and BN are parallel and IC this line is transversal. So this angle is refraction. If this angle and this angle are equal, angle BIA dash and CBN are equal to R, right? Therefore in right angle triangle ABAO, अब BAO this is a right angle triangle. BAO ये पूरी triangle BA and O, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, दिस इज साइन आई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. दिस इज अ परपेंडिकुलर ना, BA इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज OB. तो साइन आई इक्वल टू BA ओवर OB एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल अब IAB, BA सिमिलरली परपेंडिकुलर एंड IB इज हाइपोटेन्यूज साइन R. बहुत आगे. बट फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम मीडियम, जब कोई रिफ्रैक्शन होती है मीडियम में से, बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू m म्यू a मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, इस दोनों की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास क्या आ गया IB ओवर OB. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर. अब विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू मीडियम निकाला है, विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कंसेप्ट आ गया. तो OB ओवर IB आ गया हमारे पास. सिंस द पॉइंट B इज वेरी क्लोज टू पॉइंट A, जो पॉइंट B है अगर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए पॉइंट A के, द object is viewed from a point vertically above the O, then IB equal to IA and OB equal to OA. ठीक है, अगर J पॉइंट जो B होगा when it is very close to the point A, then the object is viewed from the point vertically above the point O. ठीक है, जो हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी, vertically above the O. Therefore IB is equal to IA. अगर जो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, जे मीन्स बहुत क्लोज है, एंड OB इक्वल टू OA. देयरफॉर OA इक्वल टू ओवर IA. OA ओवर IA मीन्स OA इज रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ. ठीक है, मीन्स उन्होंने इस पॉइंट को क्या दिया, OB ओवर IB को हमने क्या लिख दिया, IA ओवर OB. OA ओवर IA बिकॉज हमें ये फाइंड करना था ना रियल और अपेरेंट डेप्थ. हमने क्या कर दिया, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस, देन बोथ आर इक्वल ना, OA इक्वल टू OB. अगर दोनों पॉइंट वेरी क्लोज होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. तो हमारे पास OA क्या है, हमारे पास रियल डेप्थ, OA इज रियल डेप्थ एंड IB इज अपेरेंट डेप्थ. OA इज रियल डेप्थ एंड I इज अपेरेंट डेप्थ. तो हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या आ गया, रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ हमारे पास क्या आ गई, रियल डेप्थ ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दस शिफ्ट OI. ठीक है, OI क्या होगी, हमारी शिफ्ट हो गई. वो हम कैसे निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ की हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, राइट. द शिफ्ट बाई विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड कर रही है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम वो कितना थिक है, एंड द कलर ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, मीन्स हम कौन से कलर की लाइट यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंस ऑफ शिफ्ट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या होगी, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऑफ द मीडियम मोर इज द शिफ्ट, उतनी ज़्यादा क्या होगी, शिफ्ट होगी. डिपेंडेंस ऑफ शिफ्ट ऑन द थिकनेस ऑफ मीडियम, जितना ज़्यादा थिक होगा मीडियम उतनी ज़्यादा शिफ्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी. डिपेंडेंस ऑन द वेवलेंथ, ये हमने पहले भी किया था, शिफ्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज सिंस
velocity refractive index of V is greater than refractive index of R, means violet color का ज़्यादा होता है, red का क्या होता है, कम होता है. therefore the shift is more for violet light than the for the red light given in medium. Next there are examples. You just read these examples by yourself. Thanks and have a nice day.